आप सभी का फिर से स्वागत है findem.com में। आज हमारे साथ फिर से एक बार अंबिका सर जी हैं। इनके साथ पहले भी हमारे साथ एक पॉडकास्ट हो चुका था और बहुत दिनों के बाद आज फिर से उसी का पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं। उस पार्ट 1 में बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कवर किए थे और स्टूडेंट्स ने उसको बहुत पसंद भी किया था। और अब जो पार्ट 2 है तो इसमें हम जो क्वेश्चंस वहाँ पे बच गए थे और साथ में ही इनकी नॉलेज में जो अपग्रेडेशन आया है, इनके एक्सपीरियंस में जो अपग्रेडेशन आया है उससे भी रिलेटेड हम और क्वेश्चंस और इनके नॉलेज से जानने की कोशिश करेंगे। तो थैंक्स अंबिका सर फिर से findem.com पर आने के लिए। थैंक यू सर, नमस्ते सर, फॉर गिविंग मी सच एन अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन। एंड सर, मैं बहुत खुश हूँ कि ये सेकंड पॉडकास्ट फिर से हो रहा है। तो वो फर्स्ट पॉडकास्ट तो बहुत सक्सेसफुल हुआ था। और उसी समय तो मैं जस्ट ये लॉ फील्ड को जस्ट मैंने ये ज्वाइन किया था। अभी मेरा चल रहा है, थर्ड ईयर चल रहा है। आई ऑल्सो बिट सम मोर नॉलेज अबाउट इट। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि अब आपके पास लॉ करियर को लेकर अच्छी खासी नॉलेज और एक्सपीरियंस आ चुका होगा। जी तो सर। सर सबसे पहले आप अपने कॉलेज के बारे में बताएं। आपके कॉलेज का नाम क्या है और आपने ज्वाइन उसको कब किया था? हाँ सर। सर, सर मैं फिर से पहले शुरू करता हूँ। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंबिका प्रसाद जैन, एंड I am pursuing integrated law (DLLB) at Madhusudan Law University, Cuttack. So now I am in third year. The Madhusudan Law University is an esteemed institution, borrowing its name from very famous, that is our Madhusudan Das. Madhusudan Das was the first graduate and first advocate of our total state of our Odisha. So he was born on 20th April 1848, and also he went to become a great national leader and renowned politician. Sir, become office because of his legendary contribution. He was addressed as he was addressed as a very prominent profession, and his birthday is celebrated on, that is called as the Lawyers Day in our Odisha. And the Morrison Law University is an established on the birth anniversary of Morrison Das on 28th April. So the university have uh, means very well furnished of our of a furniture and education. And also the university started its official functioning on the same day under the guidance of our Vice Chancellor, uh, Professor Dr. Kamaljeet Singh, from 20th April 2021. All government and private law colleges of Odisha, Cuttack, sir, our university offers 5-year integrated law (DLLB) honors, then 3 years LLB honors, then 2 years of LLM and PhD courses. They all are approved by the Bar Council of India right now. The Morrison Law University is located under the near Cuttack railway station, and sir, I can say it is the oldest university of our Odisha. Also, Morrison Law University have given three eminent judges of Supreme Court. That is Deepak Mishra sir, who is an advocate of Supreme Court also, and the university having 25 law colleges under it, and it is the best university in my point of view in our Odisha. ओके। सो इसकी रैंकिंग क्या हो सकती है इस यूनिवर्सिटी की? Sir, sir, now the university in the NIRF ranking, the university have just granted on 2020 or 21. It was before, it was a Morrison Law College. उससे ओ, पहले Morrison Law College था. उसके बाद उसको सर after completing of 100 years is getting the renowned as Morrison Law University on 21st April. So sir, ओके। from ranking, it will be the best university of only means best law university in Odisha, because it is the oldest university, if you can see, in the total Odisha. इसमें लॉ करने के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम है या फिर किस तरीके से इसको जी इसमें स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते सर, हमारे जो मॉडर्न लॉ कॉलेज ज्वाइन करने के लिए जो 5 years है सर, BLLB इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स, हैं? उसमें सर ये पहले क्या करते थे कि दे वर टेकिंग द एंट्रेंस बैचेस। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, वो फॉर्म निकालेंगे। फॉर्म निकालने के बाद जितने भी बच्चे हैं टोटल ओडिशा, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ +2, दे हम्म, विल फिल अप द फॉर्म एंड द एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू सिलेक्शन होंगे। ये 5 years भी और ये 3 years भी। So the total they were taking on the basis of entrance examination. ओके।
तो जो ओडिशा के स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ प्लस पॉइंट मिलता है या नेशनल लेवल के मतलब एक ही कोटा में रखा रखा जाता है उनको? ना सर, वो जो हमारे यहाँ पे फायदा मिलता है हमारी यूनिवर्सिटी में, वो जो पहले है जनरल, फिर एससी, एसटी, फिर ये तीन है, फिर है ओबीसी, फिर सर ये भी है फिजिकल हैंडीकैप भी है, और इसका भी है एक्स सर्विस मैन। वो जो जितने भी एक्स सर्विस मैन है, ओके। आर्मी पर्सन, उनके के लिए भी समथिंग सम सॉर्ट ऑफ उनके लिए भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। ओके। ओके। सो इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स जो है इनमें तो उनका कल्चर कैसा है? जैसे कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज में कल्चर अलग अलग होते हैं स्टूडेंट्स को लेकर। आईआईटी को देखें तो वहाँ पे कल्चर वैसा होगा कि जो करियर को लेकर ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, उनके पीछे ज़्यादा जी जाते हैं। तो लोकल कॉलेज में कुछ अलग होता है, तो इस कॉलेज का कैसा है? सर, मैं देखिए, यदि मैं पहले बताना चाहूंगा, जब हमारा कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं हुआ था उसका डिफरेंट था, क्योंकि वो मर्चेंट लॉ कॉलेज था। और ये तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, तभी उनमें सर जैसे उनमें से ये होता था कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के उनका इंटरफेरेंस होता था पहले, मीन्स वो हम्म। सब जैसे कॉलेज इलेक्शन होता था, तो सर उसी टाइम में भी सीरियसनेस था इस यूनिवर्सिटी में। बिकॉज सर इस यूनिवर्सिटी को 100 ईयर्स के फिलअप किया है, मीन्स टोटल ये सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है हमारे ओके। यहाँ के ये उड़ीसा में। और सर अभी सर मैं बताऊंगा, जब मैं इस कॉलेज में एडमिशन लिया था तभी यूनिवर्सिटी हुआ था, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना वेल डेवलप नहीं था। फिर सर जैसे ही यूनिवर्सिटी हुआ, और सर पहले क्या था कि वो जो अटेंडेंस नहीं था, मीन्स बच्चे अटेंडेंस के लिए स्ट्रिक्ट नहीं थे, उसमें कुछ स्ट्रिक्ट रूल नहीं था। जब ये यूनिवर्सिटी हो गया, ये क्या कर दिए, टोटल टोटल अटेंडेंस के ऊपर स्ट्रिक्ट कर दिए कि 78% यदि प्लस होगा ये बच्चे आके कॉलेज में एग्जाम दे सकते हैं, नहीं तो कुछ भी कर सकते हैं। तो उसी चीज का इस यूनिवर्सिटी में फायदा हुआ, बच्चे के मन में ये आया, उनके मन में सीरियसनेस आ गया पढ़ाई के ऊपर। और सर इस यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे तो यहाँ पे सीनियर और जूनियर का भी जो कोऑर्डिनेशन है यहाँ पे बहुत अच्छा है। मीन्स मधुसूदन लॉ यूनिवर्सिटी में अभी तक कोई भी मीन्स ऐसे रैगिंग केस नहीं है इस ओके। यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे बॉन्ड बहुत अच्छा है जूनियर सीनियर में। और यहाँ के जो बच्चे हैं सर, वो टीचर्स के जो भी वो बोलते हैं उसको फुल फोकस्ड हैं करियर में। और सर जैसे इस यूनिवर्सिटी के बच्चे ओनली सर लॉ फील्ड में नहीं, वो बहुत सारे फील्ड में वो एक्स्ट्रा एडवांटेज है, जैसे क्रिकेट में है, जैसे हमारे अभी जैसे मेरे एक सीनियर थे, वो अभी अभी जिम्नास्टिक में ये लेके आए, गोल्ड मेडल लेके आए ओके। जिम्नास्टिक्स में। तो सर ये टोटल ये उसी के ऊपर ही फोकस नहीं है। और सर और हमारे कितने कॉलेज में जितने भी बाहर में मूट कोर्ट होते हैं, जितने भी सिंपोजियम होते हैं, जो भी कंपटीशन होते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी के बच्चे वो उसमें भाग लेते हैं। और जैसे सर कॉलेज से यूनिवर्सिटी में हुआ डेवलप हुआ, इस टोटल द कल्चर ऑफ चेंज एंड द सीरियसनेस विद द इफेक्टिवनेस ऑफ द स्टूडेंट्स, इसमें बहुत चेंजेस है। ओके। तो ये गवर्नमेंट के अंदर आता है या प्राइवेट कॉलेज है? नहीं सर, ये होता है हमारे ओडिशा गवर्नमेंट के अंडर आते हैं सर, ओके, स्टेट गवर्नमेंट। ओके। स्टेट गवर्नमेंट। और सर ये जैसे हमारे ओडिशा में ये एक ही स्टेट गवर्नमेंट लॉ यूनिवर्सिटी है, और इसके ओके। अंडर 24+ एफिलेटेड आते हैं, कॉलेजेस आते हैं सर। ओके। ओके। और इसकी प्लेसमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो वो कैसा है? हाँ सर, ये जैसे हमारे मदरसा लॉ यूनिवर्सिटी के बारे में आप देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखेंगे, तो सर मैं बोल सकता हूँ कि मैं भी जितना घूम चुका हूँ ओडिशा में, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, सभी के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत डेवलप किए हैं। सर मैं जब पहले आया था, तो मैं यूनिवर्सिटी में जब ये कॉलेज देखा था, तो सर मेरा माइंड चेंज हो गया था कि नहीं, मेरे जितने भी दोस्त थे वो अच्छे से कॉलेज में गए हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तो हमारी यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं था तभी। मीन इलेक्ट्रिसिटी में टोटल सर जीरो था। हम्म। जैसे ही यूनिवर्सिटी हुआ सर, विद इन 3-4 मंथ, जैसे समर कोर्स हुआ, समर वेकेशन ओपन होने के बाद, सर द टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग हैव बीन चेंज। मीन्स सर हमारे क्लास में मीन्स ये लगाए हैं सर, जैसे प्रोजेक्टर है विद साउंड सिस्टम। और सर क्लास में वेल फर्निश्ड बेंच विद सर इस क्लासेस में लगाए हैं 2 AC, मीन टोटल सेंट्रल AC लगाए हैं ईच क्लास में। और फिर इसका जो लाइब्रेरी है, वो सर 12 आवर्स प्लस रहता है, ओपन रहता है। अभी वो सोच रहे हैं कि 24x7 करने के लिए, जैसे ये फर्स्ट होगा मीन्स हमारे पूरे उड़ीसा में, मीन्स ओके। स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी।
24 आवर्स 24 आवर्स 7 ये ओपन रहेगा। सर अभी भी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत चल रहा है, अभी चल रहा है टोटल इनका 7 फ्लोर्स का बिल्डिंग है, अभी काम चल रहे हैं 2 बिल्डिंग। हम्म। 7+7+ बिल्डिंग, एक ही 5 ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए एक 7 ईयर बिल्डिंग। अभी उनका सर इनका इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत डेवलप हुआ है सर इस ओके। यूनिवर्सिटी का। और इसकी प्लेसमेंट? सर अभी तो प्लेसमेंट हम जैसे मैं बोल सकता हूँ कि सर जो अभी जो मैं जिस कोर्स में मैं जिस बैच में ज्वाइन किया हूँ, मैं सर मधुसूदन लॉ यूनिवर्सिटी का फर्स्ट बैच हूँ। हम्म। 5 ईयर्स में आप देखेंगे तो इससे ओके। पहले जो बैच था सर वो सब उत्कल यूनिवर्सिटी के अंडर आता था, ओ, हमारे जो एक ओडिशा के हैं। तो अभी सर जब मैं 5 ईयर्स में पहुंचूंगा सर, आई होप सो वी विल गेट द बेस्ट प्लेसमेंट फ्रॉम आवर यूनिवर्सिटी। बिल्कुल, वी होप सेम फॉर यू। इस यूनिवर्सिटी ने आपकी लाइफ में कितनी वैल्यू ऐड की है, उसके बारे में बताना चाहोगे आप? हाँ सर। सर आप ये देखेंगे सर, दिस यूनिवर्सिटी हैव गिवन मी द कॉन्फिडेंस फर्स्ट। हाँ सर। सेकेंड चीज ये है सर, जैसे सर ये यूनिवर्सिटी मुझे सिखा है कि जो सीनियर और जूनियर का बॉन्ड कैसे रहता है। क्योंकि अब हमारे जैसे ये मन में है कि यदि हम किसी कॉलेज में जाएंगे तो ये से मीन्स रैगिंग होगा, जो भी होगा। हाँ सर, वो सभी के मन में होता है, पेरेंट्स के मन में वो डाउट श्योर सेट होता है। पर सर इस यूनिवर्सिटी के ज्वाइन करने के बाद जैसे कोई भी सीनियर आज तक मीन्स वो जैसे ट्रीट लाइक देयर सेम ब्रदर इस यूनिवर्सिटी में। और सेकंड चीज ऐड ये है सर, जैसे टोटल फोकस टू द स्टडी मीन्स हमारे क्लास स्टार्ट होता है फ्रॉम द 10 to 5। हमारा इस क्लास में होता है अटेंडेंस होता है, इस क्लास में अटेंडेंस स्टार्टिंग में एंडिंग में। तो सर इसमें ये फोकस होता है कि एक बच्चा 45 आवर्स में बैठ के क्लास में पूरा ध्यान देगा। और सर मेन चीज ये कि जैसे हमारे से ये होता है ना, ट्रायल एडवोकेसी मुटकुट होता है, वो तो वो बहुत सारी यूनिवर्सिटी में अब तक पहुंच नहीं पाया है, बच्चे उसके बारे में जानते नहीं है। पर अभी से फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर वो उसके बारे में मुझे आ गया नॉलेज, जैसे ट्रायल एडवोकेसी क्या होता है। जैसे कोर्ट में जैसे प्रैक्टिस होता है ना, अभी जैसे जी। फिल्म में देखे होंगे, वो सेम प्रैक्टिस मुझे मिला है फर्स्ट ईयर से। मीन्स वो कैसे होता है, केस फाइल कैसे करोगे, वो सब वो आड़ के हैं। और सर नाउ आई एम आल्सो अपॉइंटेड एज अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव, अभी मैं अपॉइंट हुआ हूँ। तो उससे मुझे ये मिलता है कि टोटल टोटल जैसे मेरे बैच 120 को कैसे हैंडल करना है, तो वो भी सिखाए हैं यूनिवर्सिटी। और सर यूनिवर्सिटी क्या फोकस करता है कि ये टोटल फोकस स्टूडेंट के ऊपर। मीन जैसे कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी हमारा नेशनल सेमिनार होता है, तो उसका पूरा कंट्रीब्यूट करके स्टूडेंट्स करते हैं। टोटल फंक्शनिंग कैसे होगा, प्लानिंग होगा। तो सर ये हमारा मेरा ये ओवरऑल डेवलपमेंट इस यूनिवर्सिटी से हो रहा है। और तो मैं सिर्फ कटक में भी हूँ, नया हॉस्टल में रहता हूँ, जैसे ऐसे पेइंग गेस्ट के टाइप रहता हूँ। अभी इसका हॉस्टल अब तक नहीं हुआ है, हो जाएगा। तो सर इससे मुझे अब तक फील नहीं हुआ है कि मैं बाहर रहता हूँ। मीन्स इट गिविंग मी टोटल सराउंडिंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है इस यूनिवर्सिटी का। ओके। और एक क्वेश्चन मुझे आ रहा है एज अ क्यूरियोसिटी, कि जैसे मैकेनिकल के स्टूडेंट्स होते हैं या इलेक्ट्रिशियन के स्टूडेंट होते हैं, तो उनको प्रैक्टिकल चीज़ें दी जाती है कि मशीन दी जाएगी, उसको रिपेयर करो या बनाओ। तो लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी ऐसा फेक कोर्ट रूम होता है कि जिसमें वो प्रैक्टिस कर सके? जैसे अब ये सर ये परफेक्ट क्वेश्चन था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। जैसे सर जितने भी इंजीनियरिंग फील्ड है और जैसे मेडिकल फील्ड है, उनका क्या होता है कि उनका जब ये पढ़ाई हो रहा होता है, उनका पढ़ाई खत्म होने के बाद उनका मिलते हैं वन उनसे 5 मंथ का इंटर्नशिप होता है। जी। उसमें वो सिखाते हैं आपको काम क्या करना है। बस ये जो लॉ एक ऐसा फील्ड है, हम लोग को इसमें फर्स्ट चीज मिलता है कि मूट कोर्ट। सर ये मूट कोर्ट क्या होता है ना, टोटल जैसे एक केस में क्या होता है, मीन्स जैसे क्या करेंगे, एक फेक केस होगा, एक जी। फेक केस वो बना के हमें प्रेजेंट कर देंगे। तो हमें पहले करना होगा कि एक खड़ा होगा अपोनेंट, एक होगा एपिलेंट होगा, एक पिटिशनर होगा, पिटिशनर और रिस्पोंडेंट। ये पहले चूज करेंगे ये उनमें से कौन सा बच्चा क्या होगा। फिर वो क्या करेगा बच्चा, वो बच्चा पिटिशनर का पूरा केस फाइल स्टडी करेगा टोटल। और जो जो होगा रेस्पोंडेंट होगा, वो भी रेस्पोंडेंट का पूरा केस फाइल स्टडी करेगा। केस फाइल स्टडी करने के बाद 3 बैठेंगे, जज बैठेंगे, तीनों जज के सामने उसको जाना है और उसको अपने केस को वहां पे रिप्रेजेंट करना है। उसको अपने जितने भी इश्यूज हैं, जितने भी वो इश्यूज होगा, उसको उसी में वो सेक्शन यूज करके केस ला यूज करके उसको वहां पे उसका आर्गुमेंट करना है। और ये दोनों में आर्गुमेंट होगा, पिटिशनर साइड से आर्गुमेंट होगा और रेस्पोंडेंट साइड में आर्गुमेंट होगा। सर ये फर्स्ट है। और सेकंड आता है सर ट्रायल एडवोकेसी। ट्रायल एडवोकेसी में क्या होता है ना सर, जैसे ये सोच लीजिए ये पूरा है कि रियल लॉयर कोर्ट है। ट्रायल एडवोकेसी में जैसे एक आता है ना, फिल्म में देखे होंगे, एक आके कोई एक
आदमी खड़ा होगा, उससे जाके वो जो एडवोकेट होगा उससे क्वेश्चनर ही पूछेगा कि हम्म, आप जो बोल रहे हो ठीक बोल रही हो या नहीं, सच बोल रहे हो कि नहीं। वो ट्रायल एडवोकेट में होता है। वो हमें फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट वो हमें मिल जाते हैं यहाँ पे। विटनेस फिर है। हमारे जो, हाँ जी सर, जितने भी होते हैं ना विटनेस, वो उनको खड़ा करेंगे, एक विटनेस खड़ा करेंगे, तो हमें बोलेंगे कि आपको उनसे जो पूछना है, उनसे जो आपको निकलवाना है, आप उनसे कैसे निकलवाते हो, तो वो वाली चीज हमें वहाँ पे फेस करना होगा। और सर वो भी है, और एक सिंपोजियम भी है, जिससे कोई भी सेमिनार चल रहा होगा, जिससे हमें जजेस जो जजमेंट लिखते हैं, उसका भी कंपटीशन होता है सर, जजमेंट राइटिंग। एक केस होगा, पूरा बता देंगे कि ये आर्गुमेंट हुआ है, ये हुआ है। बीइंग ए जज, आप उसका क्या देंगे, उसका आप आर्गुमेंट क्या देंगे, उसका जजमेंट क्या होगा, वो आप खुद लिखेंगे। तो मीन्स मतलब ये ओवरऑली हो जाता है, उसको पता चल जाएगा कि मुझे क्या करना है, मुझे उसकी पढ़ाई के बाद क्या करना है, उससे पढ़ाई से पहले उसका पूरा ये क्लियर हो जाएगा डाउट। और एक सर है, ड्राफ्टिंग होता है सर, ड्राफ्टिंग प्लीडिंग जो होता है ना, बॉन्ड पेपर एग्रीमेंट, जी। ये हमारे सिलेबस में भी है। सिलेबस में भी मीन्स वो जो बच्चा पढ़ाई खत्म होने के बाद जो ड्राफ्टिंग करेगा, जो जितने भी बॉन्ड पेपर एग्रीमेंट पेपर जितने भी साइन करेगा ना, वो उससे पहले करता है। मीन्स उसका पढ़ाई फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ सेकंड या थर्ड सेमेस्टर से उसका हो रहा है, उसको दिया जा रहा है ड्राफ्टिंग का। मीन्स जैसे जितने मेडिकल फील्ड इंजीनियरिंग फील्ड है, उनको तो कुछ समय बाद दिया जाता है, और जैसे ये लॉ फील्ड ज्वाइन करते हैं, उनके फ्रॉम द बिगिनिंग सभी प्रैक्टिकल स्किल उनको दिया जाता है। और सर मधुसूदन लॉ यूनिवर्सिटी में हमारे यहाँ पे प्रैक्टिकल क्लासेस बहुत होते हैं इसके लिए। मीन्स वो पढ़ाई पे फोकस करते हैं, और पढ़ाई के फोकस के साथ वो इसके ऊपर भी ज्यादा ध्यान देते हैं। ओके। ये जो चारों कंडीशंस आपने बताई, ये खुद एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, ये ओरिजिनल नहीं होता, रियल नहीं होता। नहीं सर, ये कैसा होता है ना, ये ओरिजिनल नहीं होता। जस्ट एक सोच के, एक कहानी तो सोच के वो खुद खुद वो करेंगे, और उसका कितना विटनेसेस है, क्या हुआ है, कौन सा सेक्शन हो रहा है, कौन सा सेक्शन में ये केस फाइल हुआ है, टोटल एक फेक, टोटल बोल देंगे एक फेक कोर्ट रूम वहाँ पे बनाएंगे। टोटल मीन्स आज डिटेल हमारे एक मुड कोर्ट रूम है सर, जैसे कोर्ट में होता है ना, उसका पूरा सेटअप हुआ है उस क्लास हम्म, में। हम्म, टोटल उसी सेटअप में बैठेंगे, तीनों जजेस बैठेंगे, यहाँ एफिलेंट आएगा, रेस्पोंडेंट आएगा, जो जितने भी कोर्ट के मेंबर्स हैं, कोर्ट मेंबर्स भी होंगे वहाँ पे, जितने भी कोर्ट के मेंबर सभी बैठेंगे, जो टाइप राइटर है वो बैठेगा। टोटल एक बनाएंगे फेक कोर्ट रूम, और उसी में उनका प्रैक्टिस होगा। और सर अब ये बता सकते हैं कि एक ये ऐसा एक फील्ड है सर, ये लॉ का, मीन्स फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द करियर ऑफ द लॉ, उसको पता चल जाएगी मुझे आगे क्या करना है। क्योंकि सर ये लॉ फील्ड में वो बच्चे जितनी पढ़ाई करते हैं ना, ये पढ़ाई का यूज तो इसी में ही हो रहा है। उनका ये सभी ये पढ़ाई करके उनको किसी को भी कुछ भी सेक्शन याद रखने के लिए फोर्स नहीं है, उनका प्रैक्टिकल नॉलेज ही टोटल है इसके लिए भी। ओके। ओके। सो इसी यूनिवर्सिटी को लेकर एक लास्ट क्वेश्चन है। इसके बारे में रिव्यू देना हो और इसको रिकमेंड करना हो किसी को, तो आप क्या करना चाहोगे उसके ऊपर? यदि मैं किसको इस यूनिवर्सिटी के बारे में रिकमेंड करना चाहूंगा, तो मैं पहले बोलूंगा कि सर इस उस बच्चे का माइंडसेट है कि मुझे पढ़ाई करना है, और मुझे मीन्स स्टिल मुझे इसमें फुल फोकस रहना है, क्योंकि सर ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये है। मीन्स यदि उस बच्चे को पहले से ही सोच के आना है कि नहीं मुझे टाइम पास नहीं करनी चाहिए। अब देखें तो सर बहुत सारे लॉ कॉलेजेस होंगे जिनमें पढ़ाई होता नहीं है, ओनली जस्ट दे कम फ्रॉम, जस्ट आते हैं लॉ डिग्री लेने के लिए, हम्म, मेनली होता है। हम्म, क्योंकि सर अभी भी हमारे पेरेंट्स के माइंडसेट और सोसाइटी के माइंडसेट में है कि लॉ का करियर कुछ नहीं है। हम्म, मीन्स जिस बच्चे को कुछ नहीं मिलता वो एट लास्ट चूज करते हैं करियर लॉ। और सर मैं बोलना चाहूंगा, ये लॉ का फील्ड एक टफेस्ट फील्ड है, कि अभी हम्म, आप देख पा रहे होंगे, ऐसे मेडिकल नहीं, इंजीनियरिंग नहीं है, ऐसे कोई भी सब्जेक्ट, ऐसे कोई भी कोर्स नहीं है जिनका बीच में सिलेबस चेंज हो जाता है, मीन टोटल बुक चेंज हो जाता है। आप अभी भी देखे होंगे हमारा चेंज हुआ है, इंडियन पेनल कोड, ये तीनों बुक्स हो गए हैं हमारे, चेंज हो गए हैं। तो सर ओके। जो लॉयर्स पढ़ चुके होंगे, जजेस भी पढ़ चुके होंगे, और जो बच्चे भी, अभी मेरा खत्म हुआ है, मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा, मैं एग्जाम उसका खत्म हो चुका है, फिर भी उसका चेंज हो गया है। ऐसा कोई कोर्स नहीं है जिसका ऐसे बीच में ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम जिस फील्ड में है लॉ, हमें पता नहीं है ना। वो ये सब लॉ का बना हुआ था जब हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट था, उस समय बना गया था। उसके बाद तो ये अब तक कुछ भी उसका चेंज नहीं हुआ है। पर अभी के सोसाइटी को देखकर इन फ्यूचर चेंज होगा, क्योंकि लॉ ऐसा चीज नहीं है कि वो फ्लेक्सिबल है। हमारा लॉ फ्लेक्सिबल है और मेंटेनेबल है, वो फ्लेक्सिबल फॉर श्योर होगा। तो सर और मैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में बताना चाहूंगा
सर ये यूनिवर्सिटी is totally strict on its attendance and totally focused on the career. और सर इस यूनिवर्सिटी का ये है कि आपको यदि इस यूनिवर्सिटी में एंटर होना है तो बी स्ट्रिक्ट टू फॉलो द रूल्स ऑफ द यूनिवर्सिटी, बिकॉज सर इस कोई भी इंस्टीट्यूट होगा तो सर यूनिवर्सिटी हैव द हाई डिसिप्लिनरी कमिटी। और यदि कोई बच्चे को मर्सर लॉ यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करना है तो इसका फीस भी बहुत लेस है यदि आप कंपेरेटिवली देखना चाहेंगे, और फीस लेस है। और सर ये जो प्रोवाइड करता है वो प्राइवेट कॉलेजेस और प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बहुत ज्यादा प्रोवाइड करता है ये यूनिवर्सिटी। और वो सर हमें यहाँ पे असाइनमेंट दिया जाते हैं, टोटली फोकस्ड ऑन द करियर। तो मैं यदि कोई भी ये यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाहता है तो सर ही विल फ्री एंड उसको कोई कुछ भी सोचने के लिए जरूरत नहीं है टू ज्वाइन दिस यूनिवर्सिटी फॉर एनी ग्रेट करियर।